सभी का एक और उससे भी ज्यादा प्यार से सजाया है हमारे नन्हे मुन्ने सितारों ने। आपकी उपस्थिति से हम और हमारा विद्यालय तो खुश है ही, पर हमारे बच्चे भी अति उत्साहित हैं। We are delighted to have Dr. Kuldeep Srivastav and Dr. Uma Srivastav as our honorable guests for today. Sir, Madam, we are truly blessed. Teacher Trisha will introduce our honorable guests. And welcome to our event. It's my pleasure to introduce our chief guests, Dr. Kuldeep Srivastav and Dr. Uma Srivastav, who have graciously accepted our invitation to join us today. Dr. Kuldeep Srivastav is a famous personality. He doesn't require any introduction as he is a well-recognized figure in our city. Sir has completed his MBBS in 1981 from Gwalior. Since then, he is honored by multiple degrees from various recognized universities from India as well as Thailand. Sir is currently a research scholar of PhD Astrology from Vikram University, as he was a medical officer in District Hospital in Devas and District President of MP Cadet Officer Association. He renders selfless services to society. He has molded the lives of many people and served people with his kindness. On behalf of everyone present here, I welcome you, sir. Dr. Uma Srivastav ma'am is a highly accomplished individual in the field of education. Ma'am is the principal of Government College of Teacher Education. Ma'am is MSc, has completed M.Ed from Barakalani University, Bhopal. She is PhD in physics and also in education. Ma'am has also done international diploma in guidance and counseling in 2009 from Regional Institute of Education NCERT Bhopal. She did her postgraduate diploma in educational planning and administration from Delhi and also completed her MA in psychology. Ma'am is such a great personality that 3 research papers published her story in international journal and 11 research papers published her achievement in renowned journals including NCERT, other renowned NGOs too. It's our privilege to have you among us, ma'am. On behalf of St. Mary's Convent School Management, I welcome you, ma'am. Mohammad Arish and Pavani Chore will welcome ma'am with the sapling, and sister will adorn her with a shawl. Aznar and Hardik Vyas to welcome our respected Principal Sister Nisha. इधर देखो। I call on Lavanya and Anushka. Samore and Prakrit Dongre will welcome our primary in charge, Sister Gloria. इधर देखो, इधर देखो। Let us welcome our dignitaries with a round of applause.
we raise our hearts to the Almighty for blessing us with this delightful day. When we pray, God hears more than we say. He answers more than we ask and gives more than we imagine in His own time and in His own way. This is the power of God. Lighting the lamp is to dispel the darkness from the mind and heart. Light helps us to spread the ray of hope, love, and happiness everywhere. Our honorable guests, Dr. Kuldeep and Dr. Uma Srivastav, respected Principal Sister Nisha, Vice Principal Sister Maria Toretti, Mrs. Sneha Marathe, parent from nursery, Mrs. Rupali Trivedi, parent from LKG, Mr. Pradeep Mishra, parent from UKG, to kindly come forward and grace this occasion by lighting the lamp. Now, I invite Kiara Gautam of class UKG for a prayer song followed by prayer dance. मैं आपके सामने गीत सुनाने जा रही हूँ। मैं कक्षा UKG में पढ़ती हूँ। तोरा मन दर्पण
वाले वह पापा है और जो रुलाकर खुद रोए वह माँ है। माँ पापा की यही है पहचान। आपकी उपस्थिति से हम और हमारा विद्यालय तो खुश है ही, पर हमारे बच्चे भी अति उत्साहित हैं। वो भी आपका स्वागत करना चाहते हैं अपने अंदाज में। तो आइए आपके सामने प्रस्तुत है वेलकम डांस हमारे नर्सरी स्टूडेंट्स के द्वारा।
तो मेरे हैं, पर उसमें प्रेम कोई और कर रहे हैं। उनको पूरे करने का रास्ता कोई और दिखा रहा है, और वो है मेरे मम्मी पापा। With their costume, our LKG students will perform color dance. I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow. I could be blue, or I could be purple. I could be green or pink or black or white. I could be every color you. By our LKG students. I request Sir to please come upon the stage and encourage us with few words. धन्यवाद संचालक, आपने मुझे आप सबसे रूबरू होने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद मैं सिस्टर निशा, सिस्टर मारिया एवं आप सभी आमंत्रित पेरेंट्स, टीचर, बच्चों का अभिवादन करता हूँ कि मुझे ये अवसर प्रदान किया गया। वैसे तो मैं चिकित्सक हूँ, तो मैं बात स्वास्थ्य ही करूँगा, और कुछ सामान्य बातें होती हैं जो कि हम जानते हैं, हम में से, आप में से सभी लोग जानते हैं, परंतु उनकी एक बार दोहराना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। जो मैं अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में देखता हूँ कि बच्चों की स्वास्थ्य समस्याएं क्या हैं और उसके लिए हम पेरेंट्स को क्या ध्यान देना चाहिए।
यदि हम स्वास्थ्य की परिभाषा के हिसाब से देखें तो स्वास्थ्य जो है एक कंप्रेसिव कंसेप्ट है जिसमें हमारी फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल वेलबींग के साथ साथ स्पिरिचुअल वेलबींग का भी बहुत बड़ा योगदान है। स्वास्थ्य सिर्फ रोग की अनुपस्थिति मात्र नहीं है, हमारी संपूर्ण वेलबींग को ही स्वास्थ्य की परिभाषा में शामिल किया जाता है। स्वास्थ्य के कंसेप्ट को यदि देखा जाए तो हमारे जो सबसे बेसिक चीज है, बेसिक वो है कि हम जितना प्रकृति के अनुसार और हमारे शरीर को जिस प्रकार से प्रकृति ने बनाया है, जितना नेचुरल होकर के हम अपने जीवन को ढालेंगे या अपने बच्चों में उस तरीके की आदतें डेवलप करेंगे, तभी हम एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ नागरिक एवं स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करने में भागीदार हो पाएंगे। यदि देखा जाए छोटे बच्चों में, जैसे आप लोग छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं, तो कौन सी बीमारियां हैं जो कि सामान्यतः होती हैं? हमारे शरीर के अंदर कीटाणुओं में प्रवेश के 3 ही रास्ते होते हैं। या तो हमारे शरीर में नाक के रास्ते से कोई जो है श्वसन के द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा कोई कीटाणु प्रवेश करेगा, या हमारे भोजन के माध्यम से, ओरल रूट से, मुंह के द्वारा हमारे शरीर के अंदर कोई कीटाणु प्रवेश कर सकता है। तीसरा जो है हमारे स्किन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर कोई कीटाणु या फॉरेन बॉडी प्रवेश कर सकती है। चौथा बच्चों में कम कॉमन होता है, ईरोजेनिटल माध्यम से भी हमारे शरीर में कोई भी कीटाणु प्रवेश कर सकता है। इनकी रोकथाम के लिए यदि अपनी बात करें तो हमें स्वच्छ हवा चाहिए श्वसन के लिए। स्वच्छ हवा के लिए जिस तरीके से हमारी कॉलोनाइजेशन डेवलप हुआ है, जिस तरीके से हमारा डेंस पॉपुलेशन डेवलप हुई है, तो स्वच्छ हवा की हमें कमी होती जा रही है। उसके लिए यदि हम जो है दिन प्रतिदिन थोड़ा सा कहीं पे भी खुले में जा कर के यदि हवा घूमने का आदत बना लें। आदत का जहाँ तक प्रश्न है तो ये ऑब्जर्वेशन में है कि 21 दिन तक यदि कोई कार्य प्रतिदिन किया जाए तो फिर वो हमारी आदतों में शुमार होगा। सबसे पहले हमको जो अपने स्वस्थ करने के लिए हमको स्वच्छ हवा की जरूरत होगी, स्वच्छ पानी की जरूरत होगी, स्वच्छ भोजन की जरूरत होगी। भोजन के बारे में जो है मेरे जो प्रैक्टिस में ये आया है कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारी चीजें खाने से रोकते हैं। इस बारे में मेरा अभिमत अलग है। मेरा ये कहना है कि हमको जो भी उस मौसम में चीजें उपलब्ध हैं उनको बच्चों को खाने देना चाहिए, क्योंकि यदि हम उसको रोक देते हैं, हम कहते हैं खटाई नहीं खाओ, हम ये कहते हैं ये अचार नहीं खाओ, हम ये कहते हैं ये सीजन में अमरूद नहीं खाओ, केला नहीं खाओ, हमारे बच्चे को केले से सर्दी हो जाती है, हमारे बच्चे को अमरूद से प्रॉब्लम हो जाती है, ये गलत कंसेप्ट है। वो फल उस मौसम में इसीलिए उत्पन्न होता है, प्रकृति इसीलिए उत्पन्न करती है कि वो मौसम में उपयुक्त किया जाए, और वो हमारे स्टेमिना को, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए होता है, ना कि हमको नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। यदि सर्दी जुकाम जो है वो इन चीज़ों के खाने से नहीं होता है, ये हमारा मिथ है कि हमने ठंडा पानी पी लिया तो उससे हो गया, हमको गर्म पानी पीना है, ऐसा नहीं है। हमको जो सामान्य प्रकृति ने उपलब्ध किया है वो पिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो भी हो रहा है हमको, वो हो रहा है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाने से।
इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने हेल्दी डाइट्स को मना करा है। हेल्दी डाइट्स में जितने भी नेचुरल चीजें अवेलेबल हैं, आप उसमें से कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, आपकी वो हेल्दी डाइट में आएगा। स्किन के लिए जैसा है वो हमारा अगर पूरा स्नान ध्यान पूरी तरीके से है तो स्किन की कोई प्रॉब्लम होने का प्रश्न नहीं उठता है। अब प्रश्न उठता है कि हमारी जो है अन्य बीमारियां जो कम्युनिकेबल डिसीज वगैरह वो है, उनकी रोकथाम के लिए क्या किया जाए? क्योंकि कम्युनिकेशन जैसे जैसे अभी हम देखते हैं कि हमारे शरीर में वायरल डिसीजेस बहुत बढ़ रही हैं। कोरोना आया था, अभी आप लोगों ने देखा था। हमारे शरीर में जो है अभी फ्लू वगैरह, इन्फ्लुएंजा बच्चों में बहुत चल रहा है, बुखार चल रहा है बच्चों में, छोटे बच्चों में। इसमें भी एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। आप घबरा जाते हैं, पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कई बार, जैसे किसी ने डेंगू निकाल दिया, किसी ने कहा ये काउंट कम हो गया, ये हो गया। यदि प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर डाइट किया जाए तो सामान्य दवाइयों से भी सामान्य रूप से बच्चा ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। निमोनिया इतना कॉमन नहीं है जितना बताया जाता है। निमोनिया इतना कॉमन नहीं है जितना बताया जाता है। सामान्य सर्दी जुकाम में भी, जो कि बच्चों की चेस्ट जो होती है, बच्चों की चेस्ट जो होती है बहुत थिन होती है, तो सामान्य सर्दी जुकाम में भी बच्चे को खांसी वगैरह जब सांस चलती है तो हमको ऐसा लगता है कि बच्चे का जो है धड़कन बहुत तेज हो गई है, सांस बहुत तेज चल रही है, जबकि सिर्फ वो उसकी छाती जो है पतली होने के कारण ऐसा नजर आता है। बच्चा जब तक इल फील करेगा तो आप ये देखेंगे कि बच्चा जो है बहुत या तो चिड़चिड़ करेगा, रोएगा, या फिर जो है शांत होकर अपना लेटा रहेगा। तब आप उसको समझिए कि ये बीमार है बच्चा। एक और चीज है जो अभी हम देख रहे हैं बच्चों के अंदर कि जो है यदि बच्चा बीमार है तो भी हम चाहते हैं कि बच्चा स्कूल जाए। उससे क्या होता है कि यदि हम बीमार बच्चे को स्कूल भेज देते हैं तो एक तो स्कूल पे भी बर्डन आता है और दूसरे बच्चों को भी रोग फैलने का खतरा रहता है। तो यदि हमारा बच्चा बीमार दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि इसको जो है कफिंग हो रही है, इसको सिक्रीशंस आ रहे हैं, तो वो सिक्रीशन ड्रॉपलेट माध्यम से जो है इन्फेक्टेड होते हैं और 3-3.5 फीट की दूरी तक इन्फेक्शन फैला सकते हैं। उनको रोकना चाहिए, उनको 2-3 दिन रेस्ट करा करके फिर बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए। अब एक और चीज आती है कि अभी जो एक नया कंसेप्ट है कि हम बच्चा रो रहा है, बच्चे को मोबाइल खेलने के लिए बहुत देते हैं, तो मोबाइल का प्रयोग भी बच्चों को रेडिएशंस वगैरह पे इफेक्ट आता है। बच्चों की जो कॉमन एक जो है कॉमन कोल्ड और टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम, राइनाइटिस की प्रॉब्लम, एडिनाइटिस की प्रॉब्लम, ये बच्चों में ज़्यादा होती है। ये यदि हम जो है पेट रखते हैं घर के अंदर तो होने की संभावना बढ़ जाती है। हम अपने घर में जो पेड़ पौधे फूल लगाते हैं उनसे कई बार एलर्जिक रहती है। हालांकि जो एलर्जी सिस्टम है हमारा वो हमारे नुकसान के लिए नहीं है। एक्चुअली एलर्जी सिस्टम हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, प्रोटेक्टिव सिस्टम है, हमारा जो फॉरेन बॉडी के लिए, फॉरेन पार्टिकल्स के लिए, बैक्टीरिया के लिए हम जो रिएक्ट करते हैं, हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसका ओवर एक्टिव होना ही एलर्जी सिस्टम कहलाता है। तो ये ऐसे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है जो सेंसिटिव हैं, भावुक हैं, उनमें क्रिएटिविटी है, ऐसे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। जिस चीज़ को हम नुकसानदायक समझ रहे हैं वो हमारे किसी फील्ड में हमारे लिए फायदेमंद भी है। जैसे बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ज़्यादा भावुक हैं, ज़्यादा क्रिएटिव हैं, ज़्यादा देने वाले हैं भविष्य में, हमको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है डे टू डे रूटीन में कि इसको किस चीज़ से एलर्जी है, उस चीज़ को अवॉइड करें। बाकी मेरी राय ये है कि बच्चों को ओपन एटमॉस्फेयर में जितना आप खेलने कूदने के लिए जितना एक्सपोज करेंगे उतना उनका डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होगा और उनको मजबूत बनाएगा।
एक और बीमारी है जो बच्चों में बहुत कॉमन है, बच्चों में क्या बड़ों में भी बहुत कॉमन है, पर बच्चों में इफेक्ट कम देती है, वो है वर्म इन्फेस्टेशन। एक्चुअली वर्म्स का क्या है कि वो एक बार में जाते नहीं है, इसलिए डीवर्मिंग कंपलसरी होना चाहिए, 6 महीने में तो करना ही चाहिए बच्चे की। और मेरी राय तो यह है कि बच्चे से लेकर बड़े तक जितने भी फैमिली में हैं वो डीवर्मिंग करें। ये कुछ व्यवहारिक बिंदु हैं जो मैं बता रहा हूँ। इसमें इसके अलावा जो है आप लोग में से कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या हो। मेरे ख्याल से इतना काफी है। मैं फिर से एक बार सबका अभिवादन साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। It was extremely helpful for us. हम आपके कहे गए शब्दों का ध्यान रखेंगे और उसे अपने जीवन में अपनाएंगे। Will surely take you to your childhood, will definitely make you stress-free and happy. So here comes our students of class UKG with an energetic dance performance. पेड़ों में ताली बजी, पत्तों की
body and mind to relax. So, dear audience, relax and enjoy our next performance by our nursery Tiny Tots. They will definitely mesmerize your minds. of delightful performance by our little ones to an inspiring performance of today's program. May they are not perfect as professionals, but believe me, they have put in a lot of efforts to make it perfect. So I request you to please appreciate them. And wait and watch as our budding artists, our future actors are presenting a skit before you. Zindagi Ke Rang.
सबके जीवन में होती है अपेक्षा। बच्चे पूरे सब चीज को साथ लिए करते हैं, वो है अपेक्षा। नमस्कार, हम यूकेजी के बच्चे आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक लघु नाटक। क्या हूँ मैं, क्यों हूँ मैं, कैसी लगती है ये दुनिया, दिखता नहीं कोई मुझे, पर महसूस होती है ये दुनिया। नमस्कार, मैं अपेक्षा, सबकी दुलारी, आंखों की प्यारी, आपकी
गई है। मैं ठीक हूँ, सिर्फ प्रेम, एकता और सहयोग से। मेरी कहानियाँ सबसे अलग, नहीं कोई अच्छा पसंदीदा रंग अब मेरा है। सात रंगों से मिलकर बना आठवां रंग प्रेम, एकता और एक दूसरे की मदद, यही पसंदीदा रंग मेरा है। तो अपेक्षा के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे से प्रेम और एकता का भाव रखना चाहिए। रंगों का आपस में मिलना नए और सुंदर रंगों बनाता है। तो आओ हम भी मिलकर इस कहानी के आखिरी रंग को जीवन में मिलाएं और प्रेम का रंग अपनाएं। बच्चों की इस सुंदर प्रस्तुति से हम सबको यह सीख मिलती है कि हम सबके जीवन में होती है अपेक्षा। अपेक्षा अपनों के प्रेम की, अपेक्षा एक दूसरे के सहयोग की, अपेक्षा अपने सपनों को पूरा करने की। तो आइए भगवान के दिए हुए इस दान को, जो जीवन उन्होंने हमें दिया है, हम एक दूसरे के प्रेम सहयोग से उसे संवारें। क्योंकि जिस नज़र से देखो नज़र आती है जिंदगी, जिस नज़र से देखो नज़र आती है जिंदगी, नज़रिया बदल दो तो बदल जाती है जिंदगी, नज़रिया बदल दो तो बदल जाती है जिंदगी। The greatest dancer is someone who is willing to dance and not afraid when you feel the music. It enters your song. A good dancer cannot be defined by great technique, skill, or ability to pick up the choreography, but by confidence. And who else are more confident than our small LKG kids? So here comes our LKG stars, shining with their charming smile on the stage.
डाइसो की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। क्रिकेट का छक्का मैं तू मेरा मैं अधूरा तेरे बिन, तू मेरी बोली का सिक्का, तू ही दिलदार मेरा पक्का, तू मैं तेरे मैं अधूरा तेरे बिन। मैं किसी से कम नहीं, तूने सिखाया जीने का नुस्खा, यही तूने बताया। आज मेरी क्या ओके मगन तू छोड़ के सारे किंतु परंतु, नाच मेरी क्या ओके मगन तू छोड़ के सारे किंतु परंतु, मार चला के छोड़ गगन तू छोड़ के सारे किंतु परंतु, नाच मेरी क्या ओके मगन तू छोड़ के सारे किंतु परंतु। I request Dr. Uma Srivastava to kindly come upon the stage and express her thoughts. विद्या की देवी माँ सरस्वती के चरणों को नमन करती हूँ। विद्यालय के समस्त स्टाफ, पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ इस विद्यालय का, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आज आप लोगों के समक्ष हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी लाइफ में 3 S बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 3 S में से नंबर पहला, जिसे हम संस्कार कहते हैं। संस्कार
जो आप अपने बच्चों को देते हैं, संस्कार जो इस जैसे विद्यालय में बच्चों को मिलता है। नंबर दूसरा है स्वास्थ्य, जिसके बारे में अभी डॉक्टर साहब ने आपसे चर्चा की। और तीसरा एस है शिक्षा, जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी। तो ये 3 एस हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। शिक्षा की बात मैं करूँगी। माना जाता है कि जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, जब तक 6 वर्ष तक के होते हैं, तब तक उनके मस्तिष्क का 85% विकास हो जाता है। तो निश्चित रूप से ये जो अभी जो बच्चे हैं, ये अभी उसी स्टेज में हैं। तो हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि उनके मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकास हो सके, जिसके लिए ये विद्यालय भी पूरी तरह से प्रयास करते हैं। आप पेरेंट्स पूरी तरह से प्रयास करते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों का डेवलपमेंट, मस्तिष्क का डेवलपमेंट 6 वर्ष की आयु तक 85% होता है। कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ इसी प्रकार की बातों का उल्लेख किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लगभग 34 साल बाद आई है। और 34 साल बाद आप जो पेरेंट्स बैठे हुए हैं, ये आपके ज़माने में, आपके समय में ये रही होगी, और अब नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके बच्चों के समय में आई है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा गैप है। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में 34 इयर्स पूर्व बहुत सारी बातें नहीं उसमें शामिल की गई थी। तो नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई 34 साल बाद, बहुत सारी स्टडी करने के बाद में बच्चों की मानसिक और शारीरिक स्थिति को समझते हुए बहुत सारे परिवर्तन किए गए। तो सबसे पहला तो परिवर्तन जो किया गया है, उसके लिए हम लोग शायद, या आप लोग जब पढ़ते होंगे, 10+2 वाला एक सिस्टम था। और जो ढांचा था, हमारा एजुकेशनल ढांचा था 10वीं के साथ बाद 12वीं क्लास, 2 साल का 11th 12th। लेकिन ये बच्चे जो हैं, ये बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान है, इन्हें हम किस्मत वाला कहें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन्हीं के लिए बनी है, जैसे आपके बच्चों के लिए बनी है, जिसमें जो ढांचा है उसे परिवर्तित कर दिया गया है। और ढांचे का जो परिवर्तन किया है वो कुछ इस प्रकार से किया गया है, 5+3+3+4। जो हमारा 10+2 था वो 5+3+3+4 पर शिफ्ट हो गया है। अब ये 5 क्या है? ये 5 जो है वो फाउंडेशनल स्टेज है बच्चों की। जो 3 क्या, फर्स्ट 3 है प्रिपरेटरी स्टेज है, और सेकेंड 3 जो है वो सेकेंडरी, प्राइमरी स्टेज है और सेकेंडरी स्टेज है। नेक्स्ट, तो जो 5 इयर्स वाला जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो 5 ईयर वाले स्टेज में बच्चे, उसको भी 2 भागों में बांटा है, जिसके लिए फर्स्ट टू पहली और दूसरी क्लास के लिए बच्चा 6 साल से 8 साल के बीच में पहली और दूसरी क्लास पढ़ेगा। लेकिन उसके पहले वो 3 साल तक बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, बाल वाटिका या प्ले स्कूल जो होते हैं, उन स्कूलों में पढ़ेगा। और उसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने अलग से कैरिकुलम बनाया है, अलग से सिलेबस बनाया है। और उस सिलेबस में आप पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आपको अपने बच्चों को इस प्रकार से नर्चर करना, उन्हें फ्री छोड़ना है। जो आंगनवाड़ी में बच्चे जाते हैं, उन बच्चों के लिए वो चूंकि 3 साल का वो पीरियड होगा, 3 to 6 इयर्स का बच्चा जब पैदा होता है तो 0 से 3 इयर्स घर पर होता है।
3 इयर्स के बाद फिर वो आंगनवाड़ी, फिर 6 to 8 पहुंचेगा क्लास 1 क्लास 2 में, फिर 8 to 11 क्लास 3 to 5 में, इस प्रकार से एंड सो ऑन। तो जो सिलेबस या जो कैरिकुलम डेवलप किया गया वो कुछ इस प्रकार से किया गया है कि जब बच्चा आंगनवाड़ी में है तो उन्होंने एक जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब तैयार होती है उसके बाद में टीचर्स के लिए एनसीएफ भी तैयार होता है ना, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क भी तैयार किया जाता है कि बच्चों को पढ़ाना क्या है। तो उसमें भी परिवर्तन किया गया। तो जो ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को जो शामिल किया गया है उसके लिए भी अलग से सिलेबस बनाया है, जिसको कहा गया है कि NCPF ECCE, NCPP माने पेडागॉजी, जो शिक्षण शास्त्र कहलाता है, नेशनल कैरिकुलम पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ये बहुत छोटा छोटा और बच्चों की उस स्तर के बच्चों को, उस लेवल के बच्चों की मेंटल स्टेटस को देखते हुए तैयार किया गया है। और ये जो ECCE है ये आंगनवाड़ी, जब बच्चे हमारे आंगनवाड़ी जो 3 to 6 वाला जो फेज है उसमें इसका उपयोग किया जाएगा और बहुत छोटा छोटा बनाया गया। तो आंगनवाड़ी या बाल वाटिका में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो बच्चे जाएंगे उसको फ्रेम करने के लिए जो वहाँ काम करें उन्हें भी ट्रेन किया जाएगा। और ये जो कैरिकुलम तैयार किया गया है, पेडागॉजिकल जो कैरिकुलम तैयार किया गया है, ये उन बच्चों पर उस समय अप्लाई किया जाएगा या उन्हें सिखाया जाएगा। तो ये जो अगर मान लीजिए बाल आंगनवाड़ी में कोई 12th पास तक के जो बच्चों को पढ़ाने या शिक्षित करने वाले हैं, यदि 12th क्लास तक के हैं तो उनको एक नया डिप्लोमा कोर्स उन्हें दिया जाएगा, सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा जो कि 6 महीने का कहलाएगा। यदि वो 12th या थोड़े और ज़्यादा पास हो, यदि किसी ने कम स्टडी की है या 10th क्लास के हैं तो उनके लिए एक डिप्लोमा कोर्स होगा जो कि 1 साल तक का होगा। तो ये जो NCFP ECC है ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हो गया है ये प्री प्राइमरी बच्चों के, आपके बच्चों के लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि जब बच्चा पहली क्लास में आता है तो उस समय उसको कम से कम बोलना, सुनना, ये सब चीजें उसको आनी चाहिए। कुछ चीजें ये यहीं बाल वाटिका में, आंगनवाड़ी में सिखाई जाएंगी। तो जब ये ECCE वाला यदि पोर्शन कंप्लीट होता है तो फिर आती है FLN की बात आती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ECCE को शामिल करा जो कि पहले कभी नहीं था। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन कभी नहीं था। तो ये बच्चे इसीलिए इतने ज्यादा भाग्यशाली और आप पेरेंट्स इतने ज्यादा भाग्यशाली हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि अब हमें बच्चों को इस तरह से नर्चर करना है। तो ECCE के बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने उसमें सबमिशन किया है, वो है FLN। FLN मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। तो ये जो FLN है ये क्लास 1 से स्टार्ट होगा, अलग अलग पोर्शन में इसको तैयार किया गया है। क्लास 1-2 अलग है, क्लास 3 के लिए अलग है, केवल हिंदी मतलब लैंग्वेज और मैथ्स के लिए, गणित के लिए। तो ये जो इसकी चल रही है, ट्रेनिंग भी चल रही है और इसके बहुत सारे मॉड्यूल्स भी तैयार हैं। शायद आपके सेंट मैरीज में भी अवेलेबल होंगे, तो आपके बच्चों को ये भी मिलेगा कि के माध्यम से उनकी पढ़ाई होगी। तो जब कक्षा 1 में बच्चा आएगा तो उसको थोड़ा संख्या ज्ञान, थोड़ा अक्षर ज्ञान हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण 2 चेंजेस जो मैं समझती हूँ बहुत महत्वपूर्ण किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ड्रॉप आउट
लेवल को कम करना, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है वो लोकल लैंग्वेज में बच्चों की पढ़ाई कराना, क्योंकि बच्चा घर में कुछ और लैंग्वेज सीखता है और स्कूल जाने के बाद उसको किसी और लैंग्वेज में पढ़ना होता है। ये मैं बात कर रही हूँ जो बेसिक मूल रूप से जो इंटीरियर में जो बच्चे रहते हैं, जिनके यहाँ अलग तरह की लैंग्वेजेस चलती हैं, ट्राइबल एरिया के जो बच्चे होते हैं, उन लोगों को भी ध्यान में रखकर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तैयार की गई है। तो ये पेरेंट्स की कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि पेरेंट्स को भी घर में देखना है अपने बच्चों को, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बच्चा विद्यालय में कम समय रहता है और अपने घर में अधिक समय तक रहता है। तो जो डॉक्टर साहब ने जो बात करी थी, हेल्थ की जो बात की थी, वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों पर स्ट्रेस न डालें। अभी इतने सुंदर सुंदर डांस किए, स्ट्रेस को लेकर भी बच्चों ने डांस किए। आप लोग ने उनके चेहरे देखे, कितने खिले खिले चेहरे थे। तो पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने बच्चों को समझें, साइकोलॉजिकली अपने बच्चों को समझें और उन्हें वो दे जो वो चाहते हैं, उस तरह की खुशियां दे जो वो चाहते हैं। अपनी तरफ से प्रेशर उन पर ना ला दे। और एक और जो बात कही गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, वो टीचर एजुकेशन के लिए, क्योंकि बच्चे हैं तो टीचर एजुकेशन की भी बात आएगी। टीचर एजुकेशन के लिए भी उन्होंने सिलेबस बहुत सारा रिफॉर्म किया है, नया सिलेबस बनाया है और उसमें ये चीज़ें डाली, मतलब ECCE जो बीएड करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो बीएड करेंगे या जो इन सर्विस बीएड करते हैं, बैचलर इन एजुकेशन करते हैं, उनके लिए भी इसमें डाला गया है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑल्दो बहुत समय बाद तैयार की गई है, लेकिन उन भाग्यशाली बच्चों और पेरेंट्स के लिए तैयार की गई जो आप लोग बैठे हैं। तो एक बार NEP के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं बहुत आभार प्रदर्शित करती हूँ मैडम का, प्रिंसिपल मैडम का, प्राइमरी सेक्शन की मैडम का, रघुवंशी मैडम का खास तौर पे, जिन्होंने हम दोनों पति पत्नी को चुना आज यहाँ के लिए। और आशा करती हूँ कि ये विद्यालय बहुत फले फूले और यहाँ के बच्चे हर जगह अपना नाम रोशन करें। शुरुआत यहाँ इस लेवल से शुरुआत हो जाएगी तो बिल्कुल निश्चित रूप से ऊपर वाले ने चाहा तो ये विद्यालय बहुत ही नाम रोशन करेगा। आप पेरेंट्स, आपके बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Ma'am has explained to us about National Education Policy 2022. Thank you, ma'am, for enlightening us with your proficiency. Thank you. Parents are the ultimate role models for children. Every word, every action, and every choice they make has an influence on them. Every child finds strength, comfort, and a sense of belonging to their parents. Parental love is the foundation on which they stand, and it's their support that lifts them up. And here they are to reflect the unconditional love and support given by each and every one of you, dear parents. Now comes our LKG children to express their love and to thank you in their own way.
ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। Our little artist of pre-primary section made us to reach this successful manzil. Dear audience, hope had a lovely time this morning. Before we say goodbye, one last dance to get lost in the rhythmic moves and enchanting music with a wonderful dance performance by UKG children.
classroom. Let us give a thunderous ovation for all our little ones. They have done their best to entertain us today. Now, I request the respected Sister Principal, Sister Nisha, to say a few words of encouragement. Good morning to all of you. My dear parents who are walking out, you are expected to sit here for 10 minutes. Please come back. You will not get your children till we finish the complete program. Parents जो बाहर खड़े हैं, please अंदर आइए. सिर्फ 10 मिनट का सवाल है. अंदर आइए please. अभी तक हमने बच्चों को परफॉर्मेंस देखा. Please आइए. कुलदीप सर, सब पेरेंट्स को अंदर करिए. सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठिए. 10 या 5 मिनट बस. थैंक यू. Honorable guests of the day, my dear father, my dear sisters, my dear teachers, and my dear little students, and all of you parents gathered here. It was a lovely time. The children of the pre-primary session entertained us. Yes, it was really a joyful moment for all of us. I stand here to express my feelings at this moment. I'm sure all of you had a relaxing and enjoyable time this morning. No doubt it has been a tedious task for our pre-primary teachers to prepare our little ones for this day. They have done their best and your children have performed remarkably well. A lot of planning has been done in order to bring out the best in our children. I request you, dear parents, to appreciate our teachers for preparing the little ones for today's function. Please give them a louder ovation because they deserve it, because they are the ones who prepared our children. Our teachers are not only teachers, they are also artists, they are also speakers, they also perform. And you can see you saw the performance on the stage. It's not so easy to prepare them, but you saw the wonderful program. It needs a lot of patience. It needs a lot of efforts from the teachers' part. Once again, for all the teachers, clap. Dear primary teachers, on behalf of St. Mary's School, I thank each one of you for putting up this lovely program. And you can see this backdrop, colorfully displayed. The flowers made by the teachers and the students. Everything is done by the pre-primary section. You need to appreciate them. You need to cooperate with them. That's the main thing is needed. Before I give few words, before you all go out, my dear parents, as I stand here, I am extremely thankful to both of you, Dr. Uma and Dr. Kuldeep Srivastav. Indeed, your presence with us this morning has been very enriching. Both of you, in turn, have spoken on relevant topics. One touched on the topic of family issues and you gave us some tips, while you, ma'am, spoke on the topic, hot topic I would say, related to education, that is about New Education Policy 2020. Thank you, ma'am, for explaining to our parents about the new education policy and its implications. On behalf of St. Marians, I express my sincere gratitude for accepting our invitation and spending your valuable time with us. Thank you once again. Give them a special clap because they agreed to come, both of them together, one from the medical field and one from the education field. We are proud of you, ma'am and doctor. Thank you.
we all need to upgrade ourselves. We need to accept the fact that alone by ourselves, we know little. But by listening and sharing, we enrich ourselves. Only then we can teach our children something sensible. Dear parents, as you nurture your children, permit me to give you some important information. Listen carefully. It is needed for you all. It's a reminder for all of you. I would say, look at this little quotation here and look at this little quotation here. It's all for the parents. Sometimes come closer and look at it. I would say, love your children 100%. Yes, 100% you love your children, no doubt. But at the same time, teach them right things. Correct them when in need. Avoid giving mobiles to them. Instead, give them some toys or puzzles or games items. Allow them to play, to run. Because when you all bring the children to the class, you all don't allow them to walk. You carry them till the door. Very surprising. So I would request all of you, my dear parents, allow your children to take up their own little responsibilities. They will do if you teach them. जब हम बच्चों को बताते हैं, वो खुद करते हैं. लेकिन हम बोलते नहीं बेटा नहीं करना, गिराओगे, तोड़ोगे. No. I would say, tell them to do the little duties. Like for example, teach them to respect. First of all, to respect God. Secondly, to respect the elders. And thirdly, to respect one another. Please teach your children. It's very important. Second thing, I see the timing of the school. I see many of you parents coming late. At this age, if you bring your children late, children will come late throughout their life. So please bring them in time. Uniform. KG class, nursery class, LKG, UKG, whatever you say. Sometimes you parents neglect that. To send the children with complete uniform. Please send them with complete uniform. You have this school diary. Look, open it and read it. Some of you take for granted. Please read this. Many of the instructions are given in that. And try to follow all the instructions given in this diary. When in school, my dear parents, you come to find out how your child is doing. You feel very happy when your child is doing well. You feel sad when the child is not doing. But your cooperation for this is very much needed. Right from the small age, if you don't cooperate with the teacher, for teacher alone, it is very, very difficult. So, I would request you, cooperate with the teacher. Sometimes, learn to appreciate your teachers. I know, one child at home, you find it difficult and you come and complain saying, बहुत मुश्किल है, सुनता नहीं है, सुनती नहीं है. Am I right? So why your children are not listening to you? If they don't listen to you, who else they will listen? So I would request you parents, teach them the right things and teach them to do little things. So once again, I would remind you all, follow your child right from small age. As doctors here, today's guests of honorable guests have told us some little tips about family, about upbringing of your children. So once again, I'll tell you, love your children, be strict with them, at the same time, teach them right thing, give them right thing. How many of you are giving the mobile as a time pass for you? You are busy and you're giving the mobile to your children. All of you. And you feel very happy when the child learns to operate the keypad. You feel very happy. Oh, usko sab kuch aata hai. But do you know at the same time how much of the radiation is gone in a child's mind?
So much of radiation is taken in. And child does not know to walk, child does not know to speak. If you saw here on the performance, some of the children were nicely active. Some of the children are not active. Little lifting leg, hopping, it's very difficult. Why? Because we don't allow them to. We don't allow them to jump, run, fall, walk, talk. Because we fear. So I would suggest, leave your children free, as Dr. has said, leave them free, give them the right thing, give them as per the seasons, teach them accordingly. So this is all I wanted to tell you all. And lastly, once again, I would like to thank all of you, my dear parents. I'm sure you have enjoyed the program. And thank you, honorable guests. We were very happy. We were really blessed because you all were here. Thank you so much. And our little clipping is here about our school. Small little video will be displayed. And after that, the vote of thanks. After that, you will collect some snacks and then you will go to collect your babies. Don't worry, your children are safe with all the teachers. Remember, teachers are not here except the pre-primary teachers were here. Now the teachers are all gone with your children because the little ones want to see children's face or teachers' face. So don't get worried. Complete everything and then you move smoothly to your own classrooms to collect your children. Thank you. Now it's a little video. For motivating us. Today's program would not have been successful without your supervision and expert guidance. Thank you so much. Is not only the greatest virtues but the parent of all others. We now conclude this fabulous event by a vote of thanks proposed by Sister Sanju. Good afternoon to all. Honorable guest of the day, respected Principal Sister Nisha, respected sisters, teachers, and you, my dear parents. I'm sure each of you had a lovely time this morning. On behalf of St. Mary's Convent Pre-Primary School, I, Sister Sanju, stand before you to express my words of gratitude. First of all, I thank God for His special blessings upon us today. I express my sincere thanks to our honorable guests, Dr. Kuldeep and Dr. Uma Srivastava. Your presence was our delight. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for being with us this morning and enlightening us. You have given us food for thought. Many thanks to both of you. Thank you, respected Sister Nisha, for your wholehearted support and guidance. I express my gratitude to all the teachers, office staff, as well as co-staff for your selfless efforts to see to every detail of today's function. I also thank all of you, dear audience. Your valuable presence has been wonderful. Thank you for being so incredible. Special thanks to the office bearers for your timely assistance. Once again, thanks to one and all. आप सभी को दिल से धन्यवाद. Thank you. I'd like to call our honorable guests on the stage to please come on the stage. We share them by giving them a school moment. Thank you.
this is done. Thank you, dear Sister Sanju, for your words of appreciation. We shall now rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा अब शुभ नामे त्यागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय Please come up. One parent is. A very good morning to all of you. First of all, I would like to thank all the teachers here around, Sister Nisha, Sister Gloria, all the sisters sitting here, all the teachers sitting here for giving me an opportunity to come back to the stage. I have got lot of feelings and emotions associated with this stage. मेरी स्कूलिंग इसी पर्टिकुलर स्कूल से हुई थी, so I can recall all the emotions that are associated with the school. LKG से लेके 12th का सफर मेरा मुझे एक झटके में पूरा की पूरा रिकॉल हो रहा है. The school has given a lot to me. मैं यहाँ पे हेड गर्ल थी, मुझे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला और आज मैं टाटा प्रिसिजन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड में स्ट्रैटेजिक हेड हूँ. But all these things I owe only and only to this school. सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग मेरे स्कूल के लिए ढेर सारी तालियां बजाएं. मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, जब मैं यहाँ पे पढ़ती थी तब सिस्टर मर्सी वाज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एंड द काइंड ऑफ स्टेज द स्कूल प्रोवाइड्स, द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी द स्कूल गिव्स टू द स्टूडेंट्स, the kind of grooming the school gives to the students, no other school can, I think in the world can give. Whatever I am because of this school. If I'm standing here and speaking in front of all of you, that is because I have been groomed up in this particular school. मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, मेरी टीचर ने मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई थी. वो स्टोरी मैं आप सब लोगों के साथ आज शेयर करना चाहूँगी. I think I was in 9th standard और ऐसे ही मॉरल साइंस की क्लास चल रही थी, तब मैम ने एक स्टोरी सुनाई थी और उस स्टोरी में उन्होंने बताया था कि एक बार अमेरिका के स्कूल में एनुअल फंक्शन चल रहा था. जब अमेरिका के स्कूल में एनुअल फंक्शन चल रहा था तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट था जॉन एफ कैनेडी, उन्हें एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था. मिस्टर जॉन एफ कैनेडी आते हैं और वहाँ पे एक छोटे से बच्चे को एक अवार्ड देना होता है. जॉन एफ कैनेडी उस बच्चे को जब अवार्ड देता है तो उससे हाथ मिलाता है और उससे पूछता है कि हे छोटे से बच्चे, आज बता तू जॉन एफ कैनेडी द प्रेसिडेंट से अवार्ड ले रहा है, बता तुझे कैसी फीलिंग आ रही है, हाउ आर यू फीलिंग कि भाई देश के सबसे बड़े आदमी से तुझे अवार्ड मिल रहा है. तो वो छोटा सा बच्चा जॉन एफ कैनेडी के बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर बोलता है, सर ऐसी फीलिंग आ रही है जैसी आपको आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज का राष्ट्रपति फ्यूचर के राष्ट्रपति को अवार्ड दे रहा है.
सीरियसली ये स्टोरी कभी हिस्ट्री में नहीं आती, कभी पेजेस में नहीं आती, अगर वो छोटा सा बच्चा बड़ा होके अमेरिका का 42nd राष्ट्रपति बिल क्लिंटन नहीं बनता, लेकिन वो बन गया। आई थिंक कि अगर हम कुछ सोचें, मन से सोचें, उसे ड्रीम करें, उसे थिंक करें और उसे मैनिफेस्ट करें, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ। एंड दिस लेसन वाज टॉट बाय द टीचर इन माय मॉरल साइंस क्लास। और जब ये स्टोरी मैंने सुनी थी, at that particular time I decided that I'm going to dream, I'm going to think, and I'm going to manifest, and I'm going to bring it through as much as I can. I'm still in the process, and I believe still standing in this school. जब स्कूल में आती तो वो सारी फीलिंग दोबारा से आ जाती है कि अभी जो बचा हुआ है हासिल करना, वो 100% हासिल कर लूँगी। So thank you once again to this school. I really appreciate all the pre-primary teachers, क्योंकि जैसा सिस्टर ने बोला, it's very true कि आप अपनी कंपनी के बड़ी-बड़ी बोर्ड मीटिंग्स हैंडल कर सकते हो, लेकिन छोटे से बच्चे को संभालने में जान पे आ जाती है। And I really would like to thank ऋतुजा मैम also। मेरी बेटी बहुत ही शाय है, लेकिन मैं फिर भी मैम से बहुत कोऑर्डिनेट करती हूँ, कभी-कभी उन्हें बहुत परेशान भी करती हूँ कि मैम try to bring her up। I was not expecting कि वो इतना अच्छा परफॉर्म करेगी। मुझे लगा था कि आज तो पीछे खड़ी होगी, but she was standing in the middle, and I think that all the credit goes to ma'am. So thank you so much, ma'am. Thank you all the pre-primary teachers. Thank you all the sisters. Thank you to the school. I love the school forever. Thank you. Now Aisha Sheikh wants to sing. Good morning, respected principal, my lovely teachers, and my dear friends. Today, I am so excited to tell you all about my amazing experience at the pre-primary school. First, let me tell you about my parents. They were my very first teachers. They taught me how to say please and thank you, and helped me how to learn my ABCs and 1, 2, 3. I am so grateful from all their love and support. Now let me tell you about my lovely teachers. They are like my super nice friends. They teach me how to read and write, identify shapes and colors. I am so lucky from them as my guide. Now let's talk about that very special person of our school, our sister. She is like a friend and a guide. She helps make the school a safe and a happy place for us to learn and play. She is so kind-hearted person. Now the last but not the least, my friend. I met lots of friends. We played, shared lots of things. Sometimes we all fight. But still I love my friends. So the overall experience is just like a big adventure, full of love, learn and play, full support of my parents, teachers, and my friends. Thank you all for listening. Thank you. You would have been missing. Thank you all and wish you all the best to bring up your children in a right way.